होंगी ना? Sir, speak in English. Sir, due to gravity, my head goes down. Okay, students, tell me which is the fastest thing in the world? Our thoughts, sir. Very nice. Oh, another? Light, sir. Very good. Very nice. Another? Sir, I don't think so. Yes, Why? yesterday night I felt good in my stomach. Before I think something or reach the light, lose motion done. You dirty boy! Nonsense! Move on your seat! Okay, you Dev, stand up. Did you know who was Birbal? No, sir. Pay attention on your studies. Okay, sir. I want to say something. What happened? Tell. Sir, do you know Pappu, Chandu, Manu, Sonu? No, I don't know. Sir, pay attention to your daughter. Later I will tell you. Sit down. Stand up, Ayush. Yes, sir. What? Now tell me. What's come after A? Sir, after A. Sir, You don't after know. You don't know. A. Sir, tell him. Sir, just tell him. क्या बोलती तू? You bloody fool! You don't know ABCD? Come here. Beta, I am asking ABCD. Sir, ABCD. More? Sir, more everything. Okay, now you tell. You idiot! You have blown my mind. Come here. Unile, stand up, boy. Yes, sir. Now tell me, if Earth will stuck to another planet, then what will happen? Sir, it will produce the sound of tan tan tan. Can you tell how? Sir, because Sunny Leone said, You all are idiots. You don't know. All idiots are filled in my class. Come here, come here. "No, sir. You better. No, sir. Sorry, sorry, You, move on your seat. Tell me, last question. What is the difference between truth and delusion? Sir, truth and delusion. Sir, you are teaching us that is truth, and we are getting that is your delusion. Oh no. What happened? Sir, 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 what- Forever to be played, it's for me, babe, it's forever to be. As we all know, we should respect our teachers. We should never hurt our teachers. But it is just for fun. And I hope you have enjoyed our act alone. Thank you. Rhythm correct. Maintain please.
అది డిఫరెన్స్ల మూన్ 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 కలర్ వైట్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నైట్ 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 కలర్ బ్లాక్ కొలవరి 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 हमारो पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो हमारो पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो मेरे बलमा बड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो लायो हर मेरा बलमा बड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो लायो काली मकोर नींबू सिया लायो था बाजार पे धोरो बैठ के पैर दबावड़ लाग्यो तो फिर पैर दे हाँ धोरो बैठ के पैर दबावड़ लाग्यो तो फिर पैर दे इनो गल्ला चल जीरो फिर दो पुड़ियों मंगवायो हाँ इनो गल्ला चल जीरो फिर दो पुड़ियों मंगवायो मेरे बलमा बड़ो सियानो ठंडो कोको कोलो लायो मेरे बलमा बड़ो सियानो ठंडो कोको कोलो लायो 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 ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ ਆਇਓ ਰੇ ਮਾਰੋ ਢੋਲਣਾ आयो रे मारो ढोलना आयो रे मारो ढोलना Cadets, saavdhan! Turn around! Quarter of PLC, Bharat Public Guidance Functioning from Lakshmi Majumdar Bhavan, in Mahatma Gandhi Marg, Principal State, New Delhi. The principal line of PLC is development of good leadership with you. Active spaces is encouraged and order is higher. The ground guiding a good leadership, stand in the organization. Recognize 1.5 million Scout Guides. The aim of Scout Guides is as follows. The first is formation of character. Second is formation of Scout habit. Third, training in having Scout and acquiring useful skills. And fourth, the cultivation of proper spirit of service efficient. And the main motto of Scout, on my honor, I will Vikram Satyan. झिलमिल सितारे करते तारे आपका बंधन है, पधार गए अतिथियों को हमारा सच्चा अभिनंदन है।
and how you put it together. Every day is a fashion show and this mall is your runway. This modeling is prepared by Mrs. Poonam ma'am. And today I will tell you that what is modeling. When any new fashion or trend is come, then model wear that shoes and jewelry, clothes. They do catwalk on the carpet. With the help of modeling, we came to know that what is in the trend. Modeling is also main part of dance. So now let's start the modeling. That's what I do, and never lie to me. Baby, come on, baby, do you do it right? इस मौका है ये जलवा, इस मौका है ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा. Tell them like it is. I do you. दिलकश लगे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा. Give it up. She got the stalling in her. Not even smiling in her. She got the stalling in her. जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा. ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा. तेनू सूट सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा, सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा. मत छेड़ भला मुने चूलड़ में
सबको भरमाया, है अजब इसकी माया, कोई भी रच ना पाया। हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी नहाया, नामाज में करवाया। हो ये जलवा, आग से रवानियां महंगी के We all should respect our grandparents and parents. Many times we may notice our grandparents are demanding us to wear some clothes like jeans, cut sleeves, capri, etc. But our parents compel them that there is no problem in wearing these clothes. Respect is in our heart and eyes, not in clothes. Many times our grandparents ask us to don't eat junk food, but our today's generation like it very much. These difference in our thinking or mentality shows generation gap clearly. But if our grandparents tell us about anything, it is also very essential and good for us. With the help of grandparents, we came to know many more things. Like if our stomach is paining, Dadi Ma tell us of Desi Nuska, which help us and relief in our pain. So we should respect them heartily. Now let's start their performance and try to understand them. Please clap for them. Have you done your yesterday's homework? Yes, sir. Good. Now we are going to enjoy some note writing. Your time starts now. Students, Stop writing. Time is over. Rakshit, collect all notebooks. Sir, all notebooks are here. Okay. Well, student, I hope you enjoy this activity. Yes, sir. Very nice. I will give result in next class. Yes. Have a seat, Mr. Bhumik. What happened, Mr. Bhumik? Today you are looking so much upset. Yes, मैम बात ही कुछ ऐसी है. What's the matter, Mr. Bhumik? मैम आज मैंने एक बच्चों को टेस्ट लिखने के लिए दिया था, जिसमें सब बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, पर रक्षित का टेस्ट पढ़ के मैं दंग रह गया. What happened, Mr. Bhumik? And you can see. मेरे प्यारे दादा दादी, मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं. मेरी दादी मुझे बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी बताते हैं कि जब तुम्हारे पापा जी छोटे थे तो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते थे, और वह यह भी बताते हैं कि जब तुम्हारे पापा जी खेलते खेलते गिर जाते तो वह रोने लगते और मैं उन्हें गोद ले लेता तो वह तुरंत चुप हो जाते. अब जब मेरे दादा दादी को मेरे मम्मी पापा की ज़रूरत है तो वह अपना फ़र्ज अच्छे से नहीं निभा रही हैं. मैं 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया हूँ क्योंकि यह मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं. वह कहते हैं कि तुम्हारे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है. अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुरानी हो जाएगी. मेरी मम्मी मेरे दादा दादी के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती है. आई लव यू दादा दादी. Yes, Mr. Bhumik, it is a serious matter. We should talk to Rakshit. May I come in, ma'am? Yes, come inside, please. How are you, Rakshit? We are fine, ma'am. क्या जो भी आपने इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सब सच है? Yes, ma'am, मैं कभी झूठ नहीं बोलता. देखो बेटा रक्षित, we are with you and we will talk to your parents and you will not stay far from your grandparents. Now join your class. Thank you, ma'am.
हाँ जी, कौन? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या मैं रक्षित के पापा से बात कर सकता हूँ? मैं रक्षित का पापा ही बोल रहा हूँ। मैं बीडी इंटरनेशनल स्कूल से रक्षित का क्लास इंचार्ज बोल रहा हूँ। जी सर, कहिए। क्या आप स्कूल में आ सकते हैं सर? सर, मैं स्कूल की छुट्टी होने से पहले स्कूल में आ जाऊंगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं रक्षित का पापा हूँ। ओह, हैव अ सीट मिस्टर सुहाग। धन्यवाद मैम। क्या आपने मुझे बुलाया है? यस। जी कहिए, क्या बात है? क्या रक्षित ने कोई शरारत की है? नहीं, रक्षित ने कोई शरारत नहीं की है। हमने स्कूल में एक रूल बनाया है जिसमें बच्चों को घर पे भी इंग्लिश बोलनी है। अगर घर पे वो हिंदी या हरियाणवी में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, और अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे तो वो इंग्लिश और भी अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन मैम, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़े हैं और कभी इंग्लिश में बात भी नहीं की है। यह तो मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यह आप सीख सकते हैं। यह मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। पर जब तक आप इंग्लिश सीखेंगे तब तक आप रक्षित से बात नहीं करेंगे। पर मैम, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़े हैं और इसीलिए हमने अपने बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवाया है, ताकि वह हमसे अच्छी इंग्लिश सीख सके और जिंदगी में एक कामयाब इंसान बन सके। लेकिन मैम, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चों से बात करना बंद कर दें। वो हमारा खून है, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा मिस्टर सुहाग। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे निकल जाए और लाइफ में कामयाब हो सके। और हमारे सोच, हर पीढ़ी के साथ हमारे विचार और सोच में बदलाव आता रहता है। इसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहते हैं मैम, मेरी समझ में नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपके और रक्षित के विचारों में अंतर है? बिल्कुल नहीं मैम, हमारे समय में सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। और इसी तरह आपके और आपके मम्मी पापा के विचारों में अंतर है। क्या जो चीज़ें आपको मिली थी वो आपके मम्मी पापा को मिली थी? बिल्कुल नहीं मैम, उस समय तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर एक आधा स्कूल हुआ भी करता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते थे। यही तो बात हम आपको समझाना चाहते हैं मिस्टर सुहाग। पर आज आप मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही है प्रिंसिपल मैम? आज हमने रक्षित की क्लास में एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें बच्चों को एक लेख लिखना था जिसका शीर्षक था हमारे प्यारे दादा दादी, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लेख लिखा, पर रक्षित का लेख देखकर मैं दंग रह गई। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए मिस्टर सुहाग, हमारा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था। आपका बच्चा एक होशियार बच्चा है और इस जनरेशन के आकाश पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। माँ बाप और शिक्षक उन्हें जो शिक्षा देना चाहें वो दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बाद ही होता है। जिस तरह का डाटा हम उसमें सेव करते हैं वह उसी प्रकार के डाटा के साथ भर जाएगा। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में अपने दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हैं वो उसके साथ हमेशा रहेंगे। कल को वो पढ़ लिख जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी और उसके बच्चे भी हो जाएंगे और वो कल को उनको आपसे दूर रहने को कहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर सुहाग? बस कीजिए मैम, बस कीजिए। जाने अनजाने में मुझसे और मेरी बीवी से बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए मिस्टर सुहाग, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको माफ़ी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, जाके अपने मम्मी पापा से मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है। मिस्टर सुहाग, मैम, मैं अपने माँ बाप का बहुत ही बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे रक्षित का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं अपने बेटे रक्षित को उसके दादा दादी से मिलने के लिए नहीं रोका करूँगा। ये हुई ना बात मिस्टर सुहाग। कृपया मुझे जाने की अनुमति दीजिए प्रिंसिपल मैम। ओके मिस्टर सुहाग, इट विल बी गुड। अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, मैं आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था।
क्या रक्षित के स्कूल में क्या हुआ रक्षित को? हाँ, आज मैं इसके क्लास टीचर से मिला। आज उन्होंने उन्हें एक लेख लिखने के लिए दिया था जिसका विषय था मेरे प्यारे दादा दादी। हमें माफ कर दीजिए मम्मी पापा। Generation dwells of two different generations. Generation gap may occur among family members, in school or in office. One of the very common example of generation gap is between parents and their children. Youngsters should prefer learning from their senior and teach them about the newly arrived technologies. In this way, both will be able to enhance their knowledge and reduce the effect of generation gap. Motivation, self-standing, leadership and infinities more. Maybe you all are aware up to now that why the date 20 to 10 is selected as our annual day, because it's the birthday of someone special. The special personality is our late Sushila ma'am. Today is her birthday as well as our annual day. Please clap for ma'am. And she needs not to be explained, as everybody of us know about her helping nature, mothership, leadership and love, especially for girl child. So please give a big hand of applause for Neha ma'am.
एमबीडी स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करती हूँ। नारी गौरव है, नारी गौरव है, सम्मान है, आदि शक्ति का दूजा नाम है। नारी के द्वारा ही रचा ये विधान है, हे नारी शक्ति तुझे शत शत प्रणाम है। नारी शक्ति समाज का ऐसा अभिन्न अंग है, नारी के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। नारी शब्द से हमें सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ममता की अनुभूति होती है और जहां बात आती है भारतीय नारी की तो उसमें दया, करुणा व ममता की हमें अनुभूति होती है। नारी अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी उद्धार करती है। आज मैं आपके सामने ऐसी ही एक नारी जो कि भारतीय नारी होते हुए भी एक डट कर खड़ी रही हमारे सामने, उनकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ और जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ हमारे एमबीडी इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान को खड़ा करके रखा, मजबूती प्रदान की। उस सहनशीलता, प्रेम, ममता और करुणा की मूर्ति का नाम है स्वर्गीय सुशीला देवी जी। नारी तू यह जाने है, नारी तू यह जाने है कि तुझ पे हमें अभिमान है। कुछ भेड़िए क्या जाने कि तेरी क्या पहचान है। तेरा मान तेरी मर्यादा, तेरा मान तेरी मर्यादा, तेरे जो संस्कार वही तेरी पहचान है। हम सब जाने हैं कि तू एमबीडी की शान है। जी हाँ, श्रीमती सुशीला देवी हमारी हमेशा से करुणा मई ममता की मूर्ति हमें हमारे लिए प्रेरणादायी रही हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 22 अक्टूबर 1978 को रोहतक जिले के गरीबोर नामक गांव में हुआ। ये अपने माता पिता की लाडली व सबसे छोटी संतान थी। इनके पिता का नाम इंस्पेक्टर नथुराम और माता जी श्रीमती अनारवती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्च विद्यालय से हुई तथा उसके पश्चात इन्होंने अपने स्नातक की परीक्षा पास की। 20 फरवरी 1998 को उनका विवाह हमारे डायरेक्टर सर श्री वीरेंद्र कादियान जी से हुआ। यहाँ भी उन्होंने अपने हर रिश्ते और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने हर सुख और दुख में परिवार व पति का साथ निभाते हुए अपनी जोड़ी को सीता व राम के समक्ष बनाए रखा। उन्होंने सदैव अपने परिवार के मोती रूपी सदस्यों को एक माला में पिरो कर रखा। उनकी 2 संतानें हुई, डॉक्टर अंशिका और रमन। मुस्कुरा के दर्द भुला के, मुस्कुरा के दर्द भुला के, रिश्तों में बांध के दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली थी सुशीला मैम हमारी। जब उनके पिता का निधन हुआ तब भी सबसे छोटी व सबसे लाडली संतान होते हुए उन्होंने अपने परिवार को एक साथ बांध कर रखा व उनको हिम्मत प्रदान की कि वो इससे ऊपर उठ सकें। उन्होंने हर परिवार के सदस्य की जरूरत को समझते हुए हर किरदार को निभाया और साकार करके दिखाया। मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। सुशीला मैम वो शख्सियत है जिनको सदैव सभी को खिलाना पसंद था। उनको जरूरत के समय मदद करना पसंद था, घूमना पसंद था, सजना संवरना पसंद था और एक वाक्य में यदि कहूँ तो उनको अपना जीवन जीना पसंद था। सन 2007 में हमारे डायरेक्टर सर श्री वीरेंद्र जी के साथ मिलकर उन्होंने माता भीमेश्वरी देवी शिक्षण संस्थान की स्थापना का बीज आरोपित किया। इस संस्थान को अपनी मेहनत और लग्न के पसीने से सींचकर उन्होंने आज इसे एक हरे भरे वृक्ष का रूप प्रदान कर दिया है। उनकी संस्था में वो अपने संस्था को सदैव एक मंदिर की तरह मानती थी, वो इसे पूजती थी। सभी कर्मचारियों व विद्यार्थियों को वो अपनी संतान के समक्ष ममता व प्रेम प्रदान करती थी। मैम की भगवान में अथाह आस्था थी व निष्ठा थी। मैम सदैव माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाया करती थी और इसी निष्ठा को देखकर हमारे माता भीमेश्वरी देवी मंदिर के महंत श्री सेवापुरी जी उनको अपनी बेटी तुल्य ही मानते थे। उनका स्वभाव लाखों में एक था, उनका प्रकृति प्रेम आप हमारे विद्यालय के प्रांगण को देखकर लगा सकते हैं कि वो प्रकृति से कितना जुड़ी हुई थी। उनका स्वभाव एकदम निराला था। यदि
वो किसी मुसीबत के समय होती तो अपने आप तो निडरता से उस मुसीबत का सामना करती ही, यदि कभी किसी और को मुसीबत में पाती तो उनको भी बहुत ही शीलता से, बहुत ही हिम्मत से ये बताती कि ये जो कठिन समय है ये भी कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर बीत जाएगा। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, परंतु वह सदा अपने परिवार के साथ खड़ी रही। निडरता से उनकी ढाल बनकर सामने आती और बस यही सोचती कि जो उनके दुख हैं वो मुझे क्यों ना मिल जाए, क्यों ना मैं सबको सुख ही प्रदान कर दूं। सन 2019-2020 में कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे भारत देश में कोहराम मचा रहा था। उन्होंने संस्था से जुड़े सभी विद्यार्थियों व कर्मचारियों को इससे बचाव के लिए जागरूक किया व जितनी भी सुविधाएं वे उपलब्ध करवा सकती थी उन्होंने सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उनकी माताजी की तबीयत परिवार में सबसे पहले कोरोना की वजह से बिगड़ना शुरू हो गई। अपने परिवार की सबसे छोटी व लाडली संतान होते हुए भी उन्होंने सारी की सारी एहतियात बरतते हुए यह कोशिश की कि वे अपनी माताजी को बचा सकें, व इस वायरस से उनको दूर कर सकें, परंतु उनकी यह कोशिश नाकाम रही और सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माताजी को खो दिया। वह साथ ही स्वयं इस भयानक, इस तांडवकारी कोरोना ने उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए परिवार सदैव तत्पर रहा और उन्होंने भी शुरुआती दौर में हार न मानते हुए अपने आप को घर पर ही डॉक्टर की सलाह से रोके रखा। उन्होंने अपने आप को अपने परिवार से दूर कर लिया ताकि वो अपने परिवार को इससे बचा सकें। उनकी इस समय में इतनी हिम्मत को देखकर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है, मौत से ठग गई। जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। लौट कर आऊंगा खुद से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा खुद से क्यों डरूं। तू दबे पाव मत आ, तू सामने आ, तू सामने आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हुई सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी कि कोई गम नहीं, बात ऐसी कि कोई गम नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। प्यार परायों से मुझे इतना मिला, न बाकी है अब अपनों से कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने कर लिए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर है हौसला, पार पाने का कायम मगर है हौसला। देख तेवर तूफा के तेवरी तन गई, मौत से ठग गई। इसी के साथ एक और दुखदाई खबर कि श्री वीरेंद्र जी की मौत का निधन भी, माताजी का निधन भी उसी दौरान हो गया और अंत में हमारी प्रिय सुशीला मैम भी हमें छोड़कर दिवंगत हो गई। इस खबर ने सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों, रिश्तेदारों व जानने वालों को बुरी तरह से तोड़ दिया। वह अपनी आखिरी श्वास तक लड़ती रही, परंतु 28 मई 2021 को हमें वो माँ अनाथ सा छोड़कर चली गई। उनका समाधि स्थल हमारे स्कूल के ही प्रांगण में बनाया गया है ताकि वह किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष, हमारे साथ विद्यमान रहे। उनके प्रेम रूपी सागर में सभी इतने गहरे डूबे हैं कि जब भी उनसे जुड़ी किसी भी बात का जिक्र होता है तो वह हमारी आंखें नम कर देती है। जब हमारा स्कूल उनके इस विरह के दुख से उभरा भी नहीं था कि समाज में होने वाली बातों ने हमें थोड़ा तोड़ दिया। माना कि सुशीला मैम हमारे स्कूल की, अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी थी, परंतु हमने भी कम मेहनत नहीं की। हमने उन सब बातों को झुठलाने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए कि हाँ, हम इस संस्था को उनकी प्रेरणाओं के साथ ऊपर उठा सकते हैं, और हमने वो करके भी दिखाया। मैम का सपना था कि संस्था में आए हर विद्यार्थी को सफलता प्राप्त हो। उनके सपने को साकार करने के लिए हमारी एक छोटी सी पहल ने हमें हौसला दिलाया। हमने इसी वर्ष 2022-23 के सत्र से कोचिंग क्लासेस शुरू की और केवल 6 महीने मात्र की मेहनत से हमें फल भी देखने को मिला।
हमारे स्कूल की 2 छात्राएं दिया और अंजलि ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस संस्था की कीर्ति को हम वादा करते हैं कि इतना बढ़ाएंगे, इतना आगे तक लेके जाएंगे कि श्री माता भीमेश्वरी देवी स्कूल का परचम लहराएगा। चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो जमी पे कहीं सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी, छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों में गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात में हम सुबह ढूंढते हैं। आज मैम का जन्म दिवस है, जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और आप सभी भी इसका आनंद उठा रहे हैं। और हमें भी ये अनुभूति है कि वो यहीं कहीं हमारे आसपास हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। दीपक में अगर नूर ना होता, दीपक में अगर नूर ना होता, तन्हा दिल इतना मजबूर ना होता। आपको हम खुद बर्थडे विश करने आने आते अगर आपका आशियाना इतनी दूर ना होता। हमारी स्वर्गीय मैम श्रीमती सुशीला देवी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शत शत नमन। धन्यवाद। It was emotional too because we are missing her today. Neha ma'am told about her life, nature and love. And also her objective to run this institution. It was just perfect. हे ऋषियों की पावन धरती,
श्री कृष्ण ने यो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना, थम ठाक है मिर्च उवार दियो, मेरे वतन के खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया तय न्यारा, हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की, बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। कर्म भूमिया वीर भूमि हरियाणे की, बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की, बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। Deaf and those people who are not able to speak, who had taken part in drama, they had also done very hard work. They will act like those people who are not able to speak and hear. It is the hardest task in among all. In this drama, you will see that how usage of mobile phone put adverse effect on student life. Or even we can say excess usage of phone is harmful to each and everyone because the ultraviolet rays arise from these gadgets. I know today mobiles are very important for us as we have an important message anytime and anywhere. But if we use mobile phone all the time, which may harmful for our eyes and health, let's see their performance and we try to understand also.